ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ಈ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಆತ ಪರಮ ತಂದೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಿಯ ಗುರುವೇ, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ, ಯೆಹೋವನೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೋ. ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸು, ಬೆಳೆಸು. ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 28ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಲ್ ರೀಡ್ Psalm 28 एज रिस्पॉन्सिव रीडिंग. भजन संहिता 28वां अध्याय उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में हम पढ़ेंगे. बारी बारी हम पढ़ेंगे. Psalm 28 भजन संहिता 28वां अध्याय. है यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा, है मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर. ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुआ के समान हो जाऊं, जो पाताल में चले जाते हैं. जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरी पवित्र स्थान की भीतर कोठरी की और अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले. उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं. उनके कामों के और उनकी करने की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर. उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे. उनके कामों का पलटा उन्हें दे. वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथों के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा. यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है. यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है. उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है. इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूँगा. यहोवा उनका बल है, वह अपने अभिषेकित के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है. आखिरी वचन हम साथ बोलेंगे. है यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपनी निज बाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे. परमेश्वर इन वचनों को आशीषित करें. ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. आइए हम प्रार्थना करें. प्रार्थना के पश्चात हम सारे लोग मिलकर प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना कहेंगे. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಭೂ ಪರಲೋಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಮಗನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿನಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಜೀವಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಧಕಾರದ ಬಂಧನಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಶೋಧನೆಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ತನಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು. ಒಬ್ಬರಾದರೂ ನಾಶವಾಗಲಾರದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ದೇವರೇ, ಈ ಮಾತನ್ನು
ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸು ದೇವರೇ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ನಿನ್ನ ಜನರು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಬರುವಾಗಲೂ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು ಕರ್ತನೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಹಬ್ಬಿರುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ನೀನೇ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ನಡೆಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನತೆ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಲ್ಲಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದನುಸಾರವಾಗಿ ದೂರಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪರಲೋಕದ ದೇವರ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು ತಂದಂಥ ದೇವರೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಸುಂದರವಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಿರುಗಿ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನೆ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡು, ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಸಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೋಸ್ಕರ, ಸೇವೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಸಭೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಆಶ್ವಾಸಿಸು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ನೀಡು ಕರ್ತನೆ. ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ನಡೆಸುವಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಸು. ಮಾತ್ರ ಕರ್ತನೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ಗೋಸ್ಕರ. ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆಶ್ವಾಸಿಸು, ಸಭಿಕರನ್ನು ಆಶ್ವಾಸಿಸು, ಸಭಾ ಪಾಲಕರನ್ನು ಆಶ್ವಾಸಿಸು, DS ಗಳನ್ನು ಆಶ್ವಾಸಿಸು, ಬಿಷಪ್ರನ್ನು ಆಶ್ವಾಸಿಸು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ವಾಸಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳರಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾ ಆತನ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಪಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ರೀಜನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಸಾಬ್ರು ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶ್ವಾಸಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶ್ವಾಸಿಸಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸೋದ್ರ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗಿರುವ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಶ್ರಮಿಸತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಶ್ರಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯೆರೆಮೀಯನ ಗ್ರಂಥ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಯೆರೆಮೀಯನ ಗ್ರಂಥ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 13ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. In the Old Testament, the reading is taken from book of Jeremiah, chapter 20, verses 1 to 13. Jeremiah 20, 1 to 13. पुराने नियम में चुनाव भाग यिर्मयाह का किताब 20वां अध्याय 1 से लेकर 13वां वचन तक. 20वां अध्याय 1 से लेकर 13वां वचन तक. ಅದಾದ ನಂತರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೊಸ್ಸೆದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ರಿಂದ 17ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. ಕೊಲೊಸ್ಸೆದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ರಿಂದ 17ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. In the New Testament, the reading is taken from Colossians chapter 3 verses 12 to 17. Colossians 3 12 to 17. नए नियम में कोलोसियों को लिखा पत्र
तीसरा अध्याय 12 से लेकर 17 वचन तक। पहले हम पुराने नियम के पाठ को पढ़ेंगे। विल रीड द ओल्ड टेस्टमेंट पोर्शन। यिर्मयाह 20 1 से 13 मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगा। जब यिर्मयाह यह भविष्यवाणी कर रहा था, तब इश्मेर के पुत्र पशहूर ने, जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था, वह सब सुना। सो पाशूर ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को मारा और उसे उस खाट में जकड़ दिया जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन के फाटक के पास है। बिहान को अब जब पाशूर ने यिर्मयाह को खाट में से निकलवाया, तब यिर्मयाह ने उससे कहा, यहोवा ने तेरा नाम पाशूर नहीं, मार्गो मिरसबीब रखा है, क्योंकि यहोवा ने यूँ कहा है, देख, मैं तुझे तेरे लिए और तेरे सब मित्रों के लिए भी भय का कारण ठहरूंगा। वे अपने शत्रुओं की तलवार से तेरे देखते ही वध किए जाएंगे, और मैं सब यहूदियों को बाबुल के राजा के वश में कर दूंगा। वह उनको बंधुआ करके बाबुल में ले जाएगा और तलवार से मार डालेगा। फिर मैं इस नगर के सारे धन को और इसमें की कमाई और सब अनमोल वस्तुओं को और यहूदा के राजाओं का जितना रखा हुआ धन है, उस सब को उनके शत्रुओं के वश में कर दूंगा, और वे उसको लूटकर अपना कर लेंगे और बाबुल में ले जाएंगे। और हे पाशूर, तू उन सब समेत जो तेरे घर में रहते हैं बंधुआ में चला जाएगा, अपने उन मित्रों समेत जिनसे तूने झूठी भविष्यवाणी की। तू बाबुल में जाएगा और वही मरेगा, और वही तुझे और उन्हें भी मिट्टी दी जाएगी। है यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हंसी होती है, जब सब कोई मुझसे टट्टा करते हैं, क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ तब मैं जोर से पुकार कर ललकारता हूँ कि उपद्रव और उत्पात हुआ। हाँ, उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और टट्टा का कारण होता रहता है। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूँगा और न उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरे हड्डियों में ददकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने बहुतों के मुँह से अपना उपवाद सुना है, चारों ओर भय ही भय है। मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बाट जोते हैं, वे कहते हैं, उसके दोष बताओ, तब हम उनकी चर्चा फैला देंगे। कदाचित वह धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है। इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे। वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला न जाएगा। है सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है। परमेश्वर इन पढ़े भागों को आशीषित करें। उस नंबर के भाग इन द न्यू टेस्टमेंट विल रीड कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्सेस 12 to 17। कोलोसियंस 3 12 to 17। कोलोसियों को लिखा पत्र
तीसरा अध्याय 12 से 17 ಕೊಲಿಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ರಿಂದ 17ನೇ ವಚನ ತನಕ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness and patience, bearing with one another and forgiving each other. Whoever has complained against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Beyond all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. Let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. Whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through him to God the Father. Amen. May the good God add his blessings upon the reading of these verses. Amen. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸುವ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. हम परमेश्वर के वचन की और जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे. ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೋಧಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮನನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಯಾರ ಮಾಡು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೆರೆಮೀಯನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಲಾಯಿತು. ಯೆರೆಮೀಯನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೆರೆಮೀಯನು ಒಂದು ದುಃಖವಾದಂಥ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವಾದನೆ ಅಥವಾ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ, ಅಥವಾ ಅದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನು, ಪಾಶೂರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾಜಕನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ, ಅವನು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಅಥವಾ ಆ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಅವನು ಏನಾಯ್ತಂತಂದರೆ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಒಂದು ಕೋಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಯೆರೆಮೀಯನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಲದಿಂದ ನುಡಿದಿದ್ದ. ಆ ನುಡಿಯನ್ನು ಪಾಶೂರನಿಗೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪಾಶೂರನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ಇತ್ತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪಾಶೂರನು ಅವನು ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಅವನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಿಂದ, ತನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದನೆಗಳಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಅವನು ಹೊಡೆದು कोठड़िಯಲ್ಲಿ बंद ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. प्रियो, हम ये देखते हैं कि यिर्मयाह एक बेबस किस्म से या इस तरह का ये बहुत ही दुखी परेशान था, क्योंकि जब वो परमेश्वर की भविष्यवाणी पाशूर नामक याजक जो मंदिर का रखवाला था, उस याजक के विरुद्ध जब परमेश्वर की भविष्यवाणी उसने की, या परमेश्वर के शब्दों को जो परमेश्वर चाहता है वो जब यिर्मयाह ने बताया, उन बातों को पाशूर स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि वो पाशूर के विरुद्ध था. तो इसीलिए पाशूर गुस्से में आकर, या पाशूर ने इस परमेश्वर के दास को या इस नबी को, यिर्मयाह को मारा और उसे एक कमरे में बंद कर दिया. कमरे में उसे बंद कर दिया. केवल ऐसे बंद नहीं किया, बांध कर बंद कर दिया. और अब यिर्मयाह का स्थिति देखिए. यिर्मयाह जो परमेश्वर ने कहा
उस वचन को उसने कहा, उसके अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कहा, फिर भी जब वो मुंह खोला तो मार खाया। प्रियो, ये सारी बातें अगर यिर्मयाह की हम किताब पढ़ेंगे, पूरे किताब पढ़ेंगे, तो यिर्मयाह अक्सर रोता बहुत था, क्योंकि वो परेशान बहुत होता था। परमेश्वर उसे कहने के लिए कहता और उसके बदले में यिर्मयाह मार खाता, या कोठड़ी में बंद होता, या उसे कुएं में बांध कर फेंकते। ये सारी चीज़ों से परेशान था। तो इसीलिए वो निराश होकर यहाँ पर 7वां वचन में इस तरह कहता है, ये इस तरह कहते हैं, हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया। परमेश्वर को देखिए, वो कहता है कि तूने मुझे धोखा दिया, क्योंकि मैं जब कभी तेरा बात करता हूँ, कहता है कि जब कभी तेरा बात करता हूँ तो लोग मुझ पर हंसते हैं और मुझे मारने आते हैं। तू बलवंत है, प्रबल है, तो मेरे साथ कुछ भी करता है। मैं हार गया हूँ, थक गया हूँ। अगर, और वो ये भी कहता है कि अगर मैं नहीं भी बोलूँगा तेरे बारे में, तू जो वचन दिया है, उस वचनों को अगर मैं नहीं भी बोलूँगा तो मेरे हड्डियाँ दिदकने लगती है, या मेरे इस तरह कहता है कि मैं रह नहीं पाता। ऐसा लगता मानो मेरे हड्डियों में आग लगी है। मैं जब तक तेरी वाणी को बोलूँगा नहीं, तब तक मैं बेचैन हो जाता हूँ। इन सारे बातों को वो कहता है। और इसमें देखिए, ये जो यिर्मयाह की स्थिति है ना, आज बहुत सारे लोग हम इस स्थिति में, या इस स्थिति के जैसे ही हमारी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है, हम परमेश्वर के अनुग्रह में अच्छी रीति से रहना तो चाहते हैं, और परमेश्वर के कहा अनुसार हम चलना चाहते हैं, लेकिन निराशा, हर वक्त निराशा पाते हैं। कोई आशा या कोई उम्मीद हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि पाशुर जैसा लोग इस दुनिया में बहुत है, जो लोगों को गुमराह करते हैं। जो परम प्रधान परमेश्वर जो जीवित है, उसके विरुद्ध वे लोगों को चलाते हैं खुद के स्वार्थ के लिए। और यही कारण है कि हम धोखा खाते हैं, या हम लोगों के या उस वातावरण से भयभीत हो जाते हैं। प्रियो, भयभीत होने के बाद, हम निराश होने के बाद, बहुत मुमकिन है कि हम परमेश्वर के मार्गों से कुछ लोग हट भी जाते हैं, हट भी गए हैं। हमारे कलीसिया में भी कुछ लोग जिनसे मेरा वार्तालाप होती है, वे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि अय्या, परमेश्वर ने क्या दिया है? मैं परमेश्वर के लिए अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था, परमेश्वर के लिए मैं एक पैर पर खड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे निराशा ही दिया है, उम्मीद नहीं है मुझे। इसीलिए मैं ना कलीसिया आता हूँ, ना कलीसिया के लोगों में मेल जोल बढ़ाता हूँ। ऐसे कहने वाले लोग भी हैं। और ये कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ना कहते हुए, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना कहते हुए परमेश्वर के विरुद्ध में खुशी, या परमेश्वर खुशी वे लोग महसूस नहीं करते, निराशा के जीवन जीते हैं। हाँ, ये हम जानते हैं कि परमेश्वर बलवंत है, प्रबल है, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है, सब कुछ जानते हैं। इसीलिए हम परमेश्वर के सामने एक अपने आप को उसके सामने झूठा प्रस्तुत करते हैं। यिर्मयाह ने जैसे किया, परमेश्वर को जैसे उसने कहा
कि तूने मुझे धोखा दिया, हम वैसे नहीं कहते हैं। हम ये कहते हैं कि ठीक है प्रभु, तू जो करता है ठीक है, लेकिन वो जो करता है उसके विरुद्ध में मैं बाहर जाने के बाद उसके विरुद्ध में चलता हूँ। मैं अपने सोच, अपने बुद्धि से और इस दुनिया के लोगों के जो इनकी चाल चलन है वैसे मैं अपने आप को बना लेता हूँ। और हासिल क्या होता है? दुख, निराशा, तकलीफ, बीमारियाँ, परेशानियाँ, हर चीज़ जो मैं नहीं चाहता वो मुझ में या मेरे द्वार पर रुक कर खटखटाता रहता है, या मेरे घर के भीतर या मेरे जीवन में उतर आता है। प्रियो, यहाँ पर मैं आज मेरा संदेश का जो शीर्षक है निराशा, डिस्करेजमेंट, ये एक ऐसा वस्तु है या ऐसा एक विषय है जो शैतान का बहुत बड़ा एक, हम कह सकते हैं ताकत है, शैतान का ताकत है। शैतान अच्छे लोगों को इसमें उलझा देता है। देखिए, यिर्मयाह का जब वो ऐसी परिस्थिति में आया तो मैं इस वचनों को जब पढ़ रहा था तो इन वचनों के ऊपर जब मैं मनन कर रहा था तो कुछ बातें परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है या मुझे मिला। पहला कि यिर्मयाह को जो परिस्थिति यिर्मयाह ने पाया या जो परिस्थिति में यिर्मयाह था, उन परिस्थितियों को हम वैसे या लगभग वैसे हमारे जीवन में अनुभव करते हैं। और अनुभव करते तो है, लेकिन क्योंकि हम ईसाई हैं तो हम इन वाक्यों को, इन परिस्थितियों को, इन तकलीफ़ों को हम जाहिर नहीं करते, हम कहते नहीं हैं। कहना किससे है? परमेश्वर से कहना है, उससे भी नहीं कहते। देखिए 7वें वचन में यिर्मयाह परमेश्वर के ऊपर गुस्सा हुआ, क्रोध हुआ। ये क्रोध जो है ना, वो एक फीलिंग है, मनुष्य है, हमारा जीवन है, हमें बहुत सारा फीलिंग है हमारे अंदर। हम खुश होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम गुस्से में आते हैं, या हमें माहौल अच्छा नहीं लगता, या हम बहुत अति प्रसन्न होते हैं। दिस आर ऑल फीलिंग्स। ये हमारा फीलिंग्स है, ये हमारा स्वभाव के, हमारा ये एक तरह हमारे अंदर वो गुण है। लेकिन ये गुण उसमें ही खराब नहीं है, लेकिन ये इन गुणों से जब कोई कार्य होता है जो अच्छा नहीं होता, तब ये गुण हमें गिरा देती है या हमें परमेश्वर के विरुद्ध ले जाती है। इसीलिए हम इन गुणों को जो परमेश्वर ने बाय डिफ़ॉल्ट मनुष्य में डाला है, इन गुणों का सदुपयोग करना है। ये जो गुस्सा है, क्रोध है, या खुशी है, दुख है, ये सारी चीज़ों को हमें सही रीति से इससे ले चलना है, या इसी सही रीति से रखना है। देखिए यहाँ पर यिर्मयाह का गुस्सा ये ठीक था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वाकई से किया था। वो लोगों का हंसी का कारण बना हुआ था, लोग उस पर हंसते थे। वो मुँह से बोलता तो लोग उसे मारते थे, इसीलिए वो परमेश्वर के ऊपर क्रोधित हुआ, कहा कि तूने मुझे हंसी का कारण बनाया है, लोग मुझे मारते हैं, मुझे गुस्सा कर मुझे मेरी टट्टा करते हैं, इंसल्ट करते हैं। प्रियो, ऐसे ही हमें
परमेश्वर के सामने हम सच्चाई से, या हमारे अंदर जो फीलिंग है उस फीलिंग को हमें बयान करना ज़रूरी है। टेल गॉड हाउ यू फील, नो मैटर इवन इफ यू आर एंग्री। अगर आप परमेश्वर से गुस्सा भी अगर आप हो, परमेश्वर के ऊपर क्रोध भी अभी आपको आ रहा है, तो आप बताइए। आप ये ना कि आप डर कर परमेश्वर क्या सोचेगा, मैं क्यों परमेश्वर से ये कहूँ। ऐसा ना करने से क्या होता है, वो क्रोध अंदर ही अंदर बड़ा होता है, या अंदर ही अंदर हम क्रोध से, गुस्से से भरकर एक दिन ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को साइलेंटली परमेश्वर को छोड़ देते हैं। वैसा ना होते हुए जैसे आप हो वैसे ही परमेश्वर के सामने उपस्थित हो। बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट, वन शुड बी ऑनेस्ट। हम पूर्ण रीति से परमेश्वर के सामने हम सच्चाई से हमें आना है और परमेश्वर के सामने हमें बात करना है। अगर मुझे गुस्सा आया है किसी विषय पर, या परमेश्वर के विरुद्ध में कोई किसी बात के ऊपर अगर मैं गुस्सा हूं, तो परमेश्वर से बात करें, पूछे। और आप ये ना कहें या ये ना समझे कि परमेश्वर से गुस्सा होना गलत है। नहीं नहीं, परमेश्वर से गुस्सा होना गलत नहीं है। गुस्सा हो जाइए अगर आपको ऐसा लगता है, आपके मन में अगर ऐसा है कि ये परमेश्वर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा वैसा, तो आप परमेश्वर पर निश्चिंत गुस्सा हो जाइए और पूछिए परमेश्वर से, बातें कीजिए, तब परमेश्वर आपको बताएगा। परमेश्वर वो इतना महान है, इतना विशाल है, आपका गुस्से का मायने नहीं रखता। वो आपका क्रोध उसके लिए मायने नहीं होता। वो आपका क्रोध को, आप अगर उससे बातें करेंगे तो आपका क्रोध को वो परिवर्तन करेगा, आपका गुस्से को वो हटा देगा और आपके साथ वो संबंध और गहरा करेगा। देखिए, क्या हम अपने माँ बाप पर गुस्सा नहीं होते? गुस्सा होते हैं, लेकिन हम गुस्से के कारण क्या माँ बाप को छोड़कर या उनसे बातें ना करते हुए रह सकते हैं? नहीं ना। हम गुस्सा होने के बाद वापस अपने माँ बाप के पास जब जाते हैं, या माँ बाप से अगर हम बात करते हैं, कहते हैं कि मैं इस कारण गुस्सा हुआ हूँ, तो इमीडिएट माँ बाप उसका उत्तर बताते हैं या ढूंढते हैं, या उस समस्या को समाधान वहीं पर कर देते हैं। परमेश्वर भी ऐसा है, वो हमारा माता पिता है। हम उसके सामने एक बच्चे की तरह जाना है, तो वो हमारी सुनेगा और हमारे हर विषय उसको बताना है, जैसे यिर्मयाह ने किया। बी ऑनेस्ट। दूसरा, इस निराशा के स्थिति में या निराश अगर हम रह रहे हैं, इस निराशा से उठने के लिए या इसके ऊपर हमें जय पाने के लिए, पहला ये है, जैसे मैंने कहा, कि आप परमेश्वर के सामने सम्मुख में आप सच्चाई से पेश आओ। आपकी प्रार्थना जब आप करोगे, आपकी प्रार्थना में आप जाहिर करो कि आपको क्या महसूस हो रहा है। जो हमें महसूस हो रहा है उन विषयों को हम अक्सर नहीं कहते हैं, हम बस परमेश्वर की दुहाई देने लगते हैं, उसको हम अच्छे कहने लगते हैं, जबकि मन में कहीं कोने में मुझे किसी बात को लेकर परमेश्वर से मैं गुस्सा हूँ। ऐसा ना करें। जो भी आपका फीलिंग है, जस्ट टेक इट टू द लॉर्ड, परमेश्वर के पास ले जाइए। दूसरा, अगर 9वें वचन में हम देखते हैं, यहाँ पर यिर्मयाह ने परमेश्वर से कहा कि तेरे वचनों को मैं अगर नहीं कहूँगा या तेरे वचन अनुसार नहीं चलूँगा तो मेरे हड्डियों में आग लग जाती है, यानी कि मैं जी नहीं पाता।
वैसा हमें रहना है। वी हैव टू बी ओबीडियंट। निराशा के ऊपर जय पाना है, भयंकर परिस्थितियों से उबरना है, तो दूसरा हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है और वो कार्य करना है जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। उन सारी बातों को आपको करना है जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए दिया है। कोई जिम्मेदारी दी है आपको। किसी को परमेश्वर के वचन बांटने की जिम्मेदारी दी है, किसी को परमेश्वर ने परिवार का जिम्मेदारी दी है, किसी को परमेश्वर ने अलग अलग तरह का जिम्मेदारियों को दिया है। उन सारे कार्यों को आप परमेश्वर की ओर से समझकर या परमेश्वर का है ये सोचकर उसे ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿ से ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ವದಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತರಾಗಿರಬೇಕು। परमेश्वर के अनुसरण करने वाले लोग होना चाहिए। यहाँ पर यिर्मयाह यही कहता है कि तूने मुझे काम दिया, अगर वो काम नहीं करूँगा तो मैं नहीं रह पाता। वैसे हम भी अगर निराशा की स्थिति से हमें उबरना है, उठना है, तो ओबे गॉड, ओबे be obedient and do all those things which he has called for or given to you to do। तीसरा हम ये देखते हैं कि 11वां वचन में इस तरह लिखा गया है, परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीरों के समान है। इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे। देखिए यहाँ पर तीसरा वचन यह तीसरी बात है। यहाँ पर यिर्मयाह कहता है कि ये जान लो, यहाँ पर यिर्मयाह बता रहा है कि मैं ये जानता हूँ कि यहोवा परमेश्वर पिता मेरे साथ है। इस बात का हमें ध्यान देना है। हमें हमेशा इस बात को ध्यान देते रहना है कि परमेश्वर मेरा साथ है। बी वॉचफुल, नो दैट लॉर्ड इज विथ यू। आप अकेले नहीं हो। आपका जो भी परिस्थिति है, उन सारी परिस्थितियों को परमेश्वर जानता है, या उस परिस्थिति में आपके साथ है। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने वादा किया है और वो वादे का पक्का है। वो कहता है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। He will never leave you, neither forsake you. Be watchful, know that you are not alone. God is with you. वो आपके साथ एक योद्धा की तरह आपके साथ है। वो आपके साथ है, इसीलिए आप जी रहे हैं, जीवन की श्वास ले रहे हैं। आप निराशाजनक स्थिति में रहने के बावजूद भी आप जी रहे हैं। ये उसका उपस्थिति हमारे साथ होने की वजह से। चौथा, यिर्मयाह कहता है 13वें वचन में, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए गाओ। यहाँ पर यिर्मयाह निराशा का स्थिति में होने के बावजूद वो इन 4 बातों को किया है, और ये करते हुए वो दिखाता है कि मैं मेरे पिता के साथ मेरा संबंध नहीं तोड़ूंगा। चौथा बात वो ये कहता है कि मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। कहता है कि गाओ उसके लिए, उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो, पूरे मन से करो। प्रियो, ये जरूरी है उसकी आराधना करना है। क्यों आराधना करना है उसकी प्रशंसा क्यों करना है? क्योंकि वो हमें संभालता है। वो हमें संभालता है। क्यों उसकी आराधना करना है? वो हमें हर चीज समय अनुसार देता है। क्यों हमें उसकी आराधना करना है? वो हमारे लिए उसकी सुंदर योजना बनाकर रखा है। कहता है, यिर्मयाह के ग्रंथ में कहता है कि फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। मुझे ज्ञात है कि तेरे लिए मेरे पास योजना है।
कहता है कि तू जब अपने माँ के गर्भ में ही था तभी मैंने तेरे लिए एक योजना बनाया है। तेरी अभी रूप भी तैयार नहीं हुआ था, मैं तेरे लिए सोच कर रखा हूं। प्रियो, आराधना करने से हम परमेश्वर की योजना में हम चल सकते हैं। आराधना करने से या परमेश्वर को महिमा देने से हम उसका प्यार को स्वीकारते हैं या उसके प्यार को अपनाते हैं। आराधना करने से हम उसके सामर्थ्य को महसूस करते हैं, उसके सामर्थ्य को पाते हैं। आराधना करना जरूरी है, हर वक्त आराधना करना जरूरी है। उसके गीतों को गाओ, उसकी महिमा करो, उसके गुणगान गाओ। परमेश्वर जैसे यिर्मयाह के जीवन में दुख का वातावरण होने के बावजूद भी वो परमेश्वर से कभी अपना नाता नहीं तोड़ा, परमेश्वर से जुड़ा रहा। प्रियो, ये शैतान का चाल है, इस चाल में ना फंसे। निराशा, देखिए एक उदाहरण के लिए, एक मार्केट में शैतान ने एक दुकान खोल के बैठा और वहाँ पर उस दुकान में उसके पास मान लीजिए नफ़रत की बोतल या नफ़रत का बीज और दूसरे के ऊपर जलना, उसका जेलसी का बीज और दूसरों को जलाना, झूठ, लालसा, घमंड, इन सारे वस्तुओं का, इन सारे गुणों का उसके पास बॉटल या मान लीजिए बोरी भरा हुआ था और सबका वो प्राइस लगा के रखा था, ये 20 रुपया, ये 100 रुपया, ये वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन एक बोरी ऐसा जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, और वो बोरी बहुत सुंदर बोरी, सुंदर गोनी। उसके अंदर क्या था? निराशा उसके अंदर था। और इस निराशा का बोरी का दाम सबसे ज़्यादा था, जितना दुर्गुण है उन सबसे ज़्यादा निराशा का। तो एक व्यक्ति पूछता है शैतान से कि भाई इन सारी चीज़ों का तुमने कम रेट रख के इस बोरी में जो चीज़ है उसका दाम तो बहुत ज़्यादा बढ़ाया। तब शैतान कहता है कि ये चीज़ें जो है ना, जैसा नफ़रत हो, ये सब चीज़ें निकल जाता है, वो टेम्परेरी निकल जाएगा। लेकिन निराशा, ये बोरी में जो है वो अगर कोई मैं उससे या निराशा से मैं किसी के हृदय में घुस सकता हूँ और घुसकर उसे पूर्ण रीति से बर्बाद कर सकता हूँ। उसके जो शारीरिक क्षमता, उसके बल, उसका धन, उसका घराना, उसका सब कुछ ख़त्म कर सकता हूँ। एक इंसान को पूर्ण रीति से नाश कर सकता हूँ निराशा से। इसीलिए वो महंगा है, लेकिन वो फेमस नहीं है। ये बाकी सब हम चीज़ों को हम कहते हैं कि ये शैतान की तरफ से है। हेट्रेड है, जेलसी है,
दूसरे के ऊपर दूसरों के चीज़ों के ऊपर आश करना, या घमंड है, गर्व है, झूठ है, ये सारी चीज़ें हम कहते हैं कि जो बुरी बातें हम बोलते हैं कि वो शैतान की तरफ से है, वो शैतान की तरफ से है, हम इनकार नहीं कर सकता। वो एक फीलिंग है, अगर उस फीलिंग को, जैसा मैंने पहले कहा, उस फीलिंग को कार्य रूपी करेंगे तो वो शैतान का हो जाता है। लेकिन शैतान जो बोरी में रखा हुआ है निराशा, वो उससे प्रदर्शन नहीं करता, वो दिखाता नहीं है, लेकिन वो निराशा समय आने पर वो निराशा का जहर हमारे अंदर डाल देता है, और वो निराशा इस तरह हो जाता है कि बाकी सारी चीज़ों को, या उसके ऊपर हो जाता है, वो हमें ही नाश कर देता है। बाकी सारी चीज़ हमें नाश नहीं करता, हम उससे बच सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, लेकिन निराशा जिसको हो जाता है वो पूर्ण रीति से ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए प्रियो, आप और मैं, हम सारे लोग कभी ना कभी निराश हो जाते हैं स्थितियों से, परिस्थितियों से, लेकिन निराश होने के बजाय, या निराश अगर आपको लगता है तो आप तुरंत परमेश्वर के पास जाइए। परमेश्वर से आपको जो महसूस आपके अंदर हो रहा है, जो गुण या जो बातें आपके अंदर हैं, उन सारी बातों को परमेश्वर के सामने खोल कर रख दीजिए। बी ऑनेस्ट। सेकेंड, बी ओबीडियंट। आप परमेश्वर के विधियों पर चले, जो कार्य वो आपको दिया है उन सारे कार्यों को करते रहें। तीसरा, आप हमेशा ये जानते रहिए कि परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो। चौथा, आप उसकी गुणगान गाते रहें, आप उसको मान महिमा गौरव देते रहें। ये करने से, चार बातें करने से निश्चित आप निराशा के ऊपर जय पाएंगे। शैतान का जो न दिखने वाला या जो उसका मुख्य अस्त्र है, उस अस्त्र को ही आप ख़त्म कर देंगे अगर आप यिर्मयाह की तरह करेंगे। तो यिर्मयाह की तरह आप परमेश्वर के पास पहुँचेंगे, आपकी पहुँच, आपकी संबंध बढ़ाएंगे। तो परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और आपको बल दे कि आप इस निराशा भरी स्थिति में आशा का किरण पाते रहें। परमेश्वर आपको आशीषित करे। ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆರಾಧನೆ ಆದಮೇಲೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಮಂತ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಟೈತ್, ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದೇವರ ಭಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಷರರ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಗೌಡರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಿಸಿಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಆರಾಧನೆ ಆದಮೇಲೆ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು, ಈ ದಿನದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. ಕಾಣಿಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚರ್ಚ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಗೌಡರ್ ಮುಖಾಂತರ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗನ್ನು ಹಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಕೊನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ. ಬರ್ತ್ಡೇಸ್: 2nd, ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ ಹಿರೇಕೆರೂರ್. 4th, ರೀನಾ ಮಿಲಿಂದ್ ಸಿರ್ಸಟ್. 4th, ಜೆನಿಫರ್ ಜಾನ್ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್. 5th, ಜೋಸಫಿನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಸಾಲಮನ್. 5th, ಜಾರ್ಜ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್. 5th, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಶಾಲ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್. 6th, ಪ್ರೀತಮ್ ಅರುಣ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್.
7th ವಿನ್ಸಿ GB ಪಾಟೀಲ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆನ್ 7th ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೂಬೆನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಇವರು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ತಮ್ಮ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಆಡೋಣ. ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಆಡೋಣ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡಿಯರ್ ಆಲ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿ. प्रार्थना मारना. आइए हम प्रार्थना करें. प्रिय प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते इस समय इन प्रियजनों को जो अपनी जन्मदिन सप्ताह मना रहे हैं, इन सारे लोगों को एक एक कर आपके हाथों में समर्पित करते हैं. विनती करते हैं प्रभु कि हर्बर्ट हीरेकेरूर, रीना, जेनिफर, जोसेफिन, जॉर्ज, मैक्स, प्रीतम, विंसी, इन सारे लोगों को आप आशीषित करें प्रभु. जैसे ये अपने जीवन के नए वर्ष में प्रवेश करेंगे, विनती करते हैं कि आप उनके साथ रहकर इनको आसमानी आशीषों से तृप्त करें और इनकी अगुवाई करें. इनके ऊपर आपकी सुरक्षा कवच रखे. अंधकार की कोई शक्ति, शैतानी कोई ताकत, बुराई इनके जीवन में न उतरते हुए पिता ये हमेशा संतुष्टि का जीवन पाए, अच्छा आरोग्य पाए और परमेश्वर के आशीषों के पात्र बनकर रह सके, ऐसी अनुग्रह करें. इनके आने जाने, इनके हर एक विषय में आप इनके साथ रहिए. उसी तरह प्रार्थना करते हैं उन प्रियजनों के लिए जो हमारे कलीसिया के सदस्य जो बीमार अवस्था में हैं, जो कमज़ोर हैं, पिता उन सभी को आप आशीषित करें. उसी तरह पिता प्रार्थना करते हैं सुतार आंटी के लिए, कुरी आंटी के लिए, लोबा आंटी के लिए, अर्थर आंटी के लिए, जोएल के लिए और मार्टिन अर्थर के लिए. इन सारे लोगों को आप छूकर चंगाई दे. पिता इन्हें आशीषित करें. पिता परमेश्वर इन्हें नया सामर्थ्य, नया बल दे ताकि ये प्रियजन फिर एक बार परमेश्वर के बल में खड़े हो सके. उसी तरह प्रार्थना करते हैं मिसेस एंड मिस्टर रूबेन फ्रैंकलिन हिरेकेरूर. पिता ये लोग अपनी शादी की सालगिरह 7 तारीख को मना रहे हैं. प्रार्थना विनती करते प्रभु कि इन्हें आशीषित करें. पिता इन्हें इन दोनों को आपके अनुग्रह में बढ़ाएं और इनकी बच्ची को भी आप आशीषित करें. पिता इस परिवार में हमेशा आपकी मुख की उजाला रखें. इन दोनों को आपके प्यार में हमेशा बनाए रखें. इनके कामों में, इनके आने जाने में, इनके सोच विचार में, इनके हर विषय में आप इनके साथ रहकर आपकी संगति प्रदान करते हुए इन्हें चलाएं. उसी तरह प्रार्थना करते प्रभु जो महामारी हमारे देश में, सारी दुनिया में फैली हुई है, इस महामारी को आप ख़त्म कराएं ताकि आपके लोग, हम सारे लोग आपके भवन में आकर आपकी आराधना कर सकें. उसी तरह प्रार्थना करते प्रभु इस आराधना के बाद आपके बच्चे आपके राज्य के विस्तार के लिए जो दान अर्पण करेंगे, पिता उस दान को स्वीकारें, उस दान को आशीषित करें और उस दान को बढ़ाकर आपके राज्य के विस्तार के लिए उपयोग करें. उसी तरह आसमान से पिता आपके आशीषों को आपके लोगों के जीवनों में, उनके घरों में, उनके इर्द गिर्द सभी जगह उंडेलते रहें ताकि आपके लोग संतुष्ट रहें. हम सारे लोगों को पिता आपके नाम पर सुरक्षित रखें. धन्यवाद करते हुए सारा मान महिमा गौरव आप ही को देते हुए प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र और मधुर नाम में मांगते करके सुन और दया से कबूल कर पिता. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಉನ್ನತಿ ಸಹವಾಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯರ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿದೆ ಆಯ್ತಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಧ್ಯವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ವಿಸಿಟಿಂಗನ್ನು ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನೀವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾದರೆ ನನಗೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇಲೆ